ناظرین ہانے علون تھا قومی اسمبلی جیتے بلاول بھٹو زرداری خیالن جو اظہار کر رہا ہے. اس بجٹ پہ اس ہاؤس سے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ہمارا معاشی ترقی کا سفر شروع ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے. زیرو ٹیکس بجٹ اعلان کیا گیا تھا. عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کی تھی. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نہ صرف نیا ٹیکس نہیں لے کر آئیں گے مگر ہم نیا منی بجٹ بھی نہیں لے کر آئیں گے. یہ جنوری کی بات ہے جناب اسپیکر, یہ جون کی بات ہے جناب اسپیکر, اور اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں. اب ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ نہ صرف منی بجٹ کا دعویٰ توڑ چکے ہو مگر نیا ٹیکسز کا دعویٰ توڑ چکے ہو. اور یہ جو منی بجٹ اب آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, اب پاکستان کے عوام میں جو مشکل میں ہے, پریشان ہے, ہر طبقہ پریشان ہے, آپ ان کو اب بھی بتا رہے ہو کہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی مہربانی, وہ مزید مہنگائی کا بندوبست کر رہا ہے, مزید غربت کا بندوبست کر رہا ہے, مزید بے روزگاری کا بندوبست کر رہا ہے. آپ کو کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونے کا ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر. اتنا economic expertise کا you don't need the economic expertise to understand کہ اگر 350 billion rupees پر ٹیکس اس وقت آئے گا, اگر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سے, پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے 250 بلین روپیز کا کٹوتی کیا جائے گا تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. جو ڈیولپمنٹ کام نہ صرف سارے صوبے میں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, پختونخوا میں چل رہا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلے عوامی نمائندے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو عوام منتخب کر کے حکومتیں بناتے ہیں ان کو سب سے پہلے عوام کو ترجیح دینا پڑتا ہے. عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو دھیان دینا پڑتا ہے. لیکن جو حکومت کسی اور کی وجہ سے بناتے ہیں ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے. ان کو عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. وہ IMF کے حکم مانتے ہوئے جو ظلم کرنے جا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کا جواب آپ بھی بلوچستان جا کے نہیں دے سکیں گے. اس حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے الائز ہے وہ اپنے شہروں میں جا کے, اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ منہ کیسے دکھائیں گے. اور لوکل باڈیز میں حال ہی میں پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے, تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس بجٹ کی ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا ہوں اور عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. سب سے پہلے جناب اسپیکر, ہم سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کے دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا. خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے, مگر پاکستان کے عوام کو بائسیکل پہ چڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی مہنگائی اتنا زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ سب کو معلوم ہے, کون پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس منی بجٹ کے تھرو جو 17% ٹیکس
पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल पे रिफाइनरी स्टेज पे लगाया जाएगा। ये पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इस बजट के नतीजे में मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ साथ जो इस हुकूमत ने फैसला किया कि सारे जो गाड़ियां हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये जो इंजन का सीसी है 100% इजाफा होगा टैक्स पे, 100% इजाफा गाड़ियों के टैक्स पे। तो जो सबसे कम इंजन का सीसी है जो 1000 अप टू 1000 सीसी, अप टू 1000 सीसी का जो इंजन है, जो आम आदमी का गाड़ी होता है, जो आम आदमी के पहुंच के गाड़ी होता है, उसमें भी अब 100% इजाफा करवा रहे हो। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड है, उस पे भी एक हेफ्टी सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इस मिनी बजट में ऐलान किया जा रहा है। और जो 17% टैक्स ऑन लोकली असेंबल्ड कार्स अबव 850 सीसी, ये तो बिल्कुल ही गरीब आदमी का गाड़ी है जनाब स्पीकर। ये नौजवान का पहला गाड़ी होता है जनाब स्पीकर। ये अपना कमाते कमाते बचाते बचाते जो पहले वो ख्वाहिश होता है कि मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर लूं। ये भी इस जालिम हुकूमत ने अवाम के पहुंच से दूर रख दी है। और अब गाड़ी भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, और बाइसिकल्स पे भी टैक्स लगा के आपने बाइसिकल्स को भी महंगा कर दिया है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुतवसत तबका के साथ, सफेद पोश तबका के साथ, नौजवानों जिनको आप क्लेम करते हो कि आप रिप्रेजेंट करते थे, और उनके साथ इंतहाई जुल्म है जनाब स्पीकर। वही लोग जो हमें यूथ के लीडर दावे करने की बात करते थे, जो पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत बताने की बात करते थे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पता नहीं गूगल से और कहां से लोग लेकर आ रहे थे और हमें ई गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे थे, और ट्विटर और फेसबुक का वो जमात जब हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर्स पे, हमारा मोबाइल सर्विसेज पे, हमारा इंटरनेट पे, हमारा फोन कॉल्स पे जो इमरान टैक्स लगने वाला है जनाब स्पीकर, ये नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। और ये जो सेक्टर है, ये वो वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान की मईशत में बहुत ही पोटेंशियल रखता है। वैसे ही हमारा जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रेटिंग है पाकिस्तान के, जो आलमी इदारे रैंक करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पिछले साल में पाकिस्तान फेल बाय 14 पॉइंट्स on the global average for the digital quality of life, और हमारा पोजीशन 97 out of 110 है। जनाब स्पीकर, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इस सेक्टर को तवज्जो देता, रिलीफ देता, ताकि हम यहाँ हमारे नौजवानों के लिए मुआशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकते। मुस्तकबिल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग में है, टेक सेक्टर में है। आपका आईटी सेक्टर इज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जहां आपने एक्सपोर्ट्स भी करवाया, और वो भी कोई आम एक्सपोर्ट्स नहीं। एक साल में 1.4 बिलियन से लेके 2.12 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छा कहानी था आपका, जिस पे आप ज्यादा स्पेस दिलवा देते, ज्यादा इंकरेज कर देते, ताकि अगले साल वो आईटी सेक्टर में मजीद एक्सपोर्ट्स हो जाता, मजीद रोजगार के मौके पैदा होते, आपकी मईशत में ज्यादा कंट्रीब्यूशन पैदा होता। मगर आपने ये देखकर क्या सोचा? आपने ये इस सेक्टर का तरक्की देखकर ये सोचा कि हम इधर भी मजीद टैक्स लगा सकते हैं, हम यहां भी मजीद खून चूस सकते हैं, आखिरी खतरा तक पहुंच सकते हैं। आपने आम आदमी का जिंदगी इतना मुश्किल करा दे दिया है कि आप जानते हो जनाब स्पीकर कि गरीब से गरीब तर से लेके आप जैसे
پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے, The tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو, ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو, وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں, 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں, موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں, پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں, اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا, ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ, لیپ ٹاپس پہ, شہباز شریف صاحب سے مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کی بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس اور امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ, مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں, مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں, جو لوکلی میڈ کمیونیکیشن کے یہ ڈیوائسز ہیں, اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے, اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے, تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیک سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا, وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب, ایک بہت طویل لسٹ ہے جو آپ ٹیکس امپورٹڈ گڈز اور لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں, بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا زرعی بحران ہے, ایگریکلچر کرائسس ہے, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے, اور آپ نے اس مشکل وقت میں, ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر. ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے, ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے, دوسری طرف آپ نے یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام, پاکستان کی زرعی معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے, مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں. یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے, زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے, اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا, کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں. جناب اسپیکر, کہانی یہاں نہیں رکتا. انہوں نے امپورٹڈ گڈز, تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں, بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے. جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں,
on donations and charities जनाब स्पीकर, charities के सामान पे donations जो लोग बेचते हैं उन पे भी अब टैक्स लगाएंगे। ये तो शौकत खानम पे भी टैक्स है। ये किस किस्म का इंसाफ है जनाब स्पीकर? आप जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए, उस पे भी टैक्स लगाएंगे। जो कुदरती आफात के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज के लिए मुफ्त सामान बेचा जाता है, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। टैक्स जो हम सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं, नॉट इंपोर्टेड, जो डोनेट किए जाते हैं, जो गिफ्ट के सूरत में दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, चैरिटी हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, उन पे भी आप 17% टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप टैक्स ऑन इंपोर्टेड एज गिफ्ट जनाब स्पीकर, खरीदे नहीं, imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। ये किस किस्म का दुश्मनी है जनाब स्पीकर? हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। कौन सा मुल्क ये अपने लिए फैसला करता है? जो खुद सैलाब, कभी सैलाब आ जाता है तो कभी मानसून का तूफान आ जाता है, तो बर्फबारी का जो सानिया मरी में हुआ है, वफाकी हुकूमत तो हर नेचुरल डिजास्टर में गायब होता है। वो खुद अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाने पर लेट हो जाते हैं। जो मानसून बारिश सिंध में और बलूचिस्तान में हुआ, जो उसका असरात ज़राई सेक्टर पे हुआ था, जो हमारा क्रॉप्स तबाह किए गए थे, ना उसको कॉम्पेंसेट किया गया, ना डैमेज को कॉम्पेंसेट किया गया। और अब आप कह रहे हो जो बाहर के मुल्कों से बंदोबस्त करके अपना चैरिटी करते हुए यहां बेचते हैं, उस पे भी आप टैक्स लगाएंगे। जनाब स्पीकर, ये आप जस्टिफाई कर सकते हो? आप खुद जब इलेक्शन लड़ते हो, आप कैसे मैं तो हैरान हूं जनाब स्पीकर, मैं इसमें बोल क्या सकता हूं। आई एम नॉट यूजुअली स्पीचलेस, बट जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है, वो आपके सामने है, पाकिस्तान के अवाम के सामने है। सर, ये तो सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रॉ मटेरियल्स है, उन पे भी टैक्स लागू किया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रॉ मटेरियल्स है, उन पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। वैसे जो दवाइयों की कीमतें हैं, वो इस हुकूमत में तारीखी इजाफा हुआ है, और इस बजट के नतीजे में जो लोकली हम दवाइयां बनाते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स पे टैक्स लगाकर आप मजीद दवाइयों की कीमतें में इजाफा का बंदोबस्त करने जा रहे हैं जनाब स्पीकर। आपने बिजली की कीमत में इतना इजाफा किया है, गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, कि इस किस्म की एनर्जी सोर्स के लिए हर तबका के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है। आम आदमी अपना घर का बिजली बिल पूरा नहीं कर सकता, किसान अपना ट्यूबवेल का बिल पूरा नहीं कर सकता। इसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी भी है, उसका फायदा उठाते हुए ट्यूबवेल की कीमत में कमी लेकर आए हैं। सोलर पैनल लाके स्कूल्स पे, घरों पे सोलर पैनल्स लगा के ये जो आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, उसको थोड़ा कम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए बंदोबस्त किया है। इसमें तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस पे आप सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। जब मौसमी तब्दीली पूरा दुनिया का टॉपिक है, उसके असरात सबसे ज्यादा पाकिस्तान जैसे ममालिक भुगत रहे हैं, चाहे वो ड्राउट की सूरत में हो, चाहे वो सैलाब और मानसून की सूरत में हो, चाहे वो गिलगित और मरी का बर्फबारी की सूरत में हो। आप कैसे ये फैसला ले सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सहूलत है उसको भी आप महंगे करने जा रहे हो? आ रहा
जनाब स्पीकर साहब आपको तवज्जो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाए गए। अब इमरान जैसे खिलाड़ी से यह उम्मीद नहीं था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाया जाएगा। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये रीजन का जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हम ना उनके बेसिक नीड्स मतलब खाने पीने तक का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप उनका रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप सेहत और तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे टैक्स लगाना जा रहे हो। HIV और एड्स का क्राइसिस है जो हमारा मीडिया में और नेशन में पता नहीं चल रहा है। जनाब स्पीकर, एक शहर रतो देरो का आपने टेस्टिंग करवाई और इतने सामने केसेस सामने आए, उसी शहर में हमने मुफ्त HIV का, एड्स का सबसे पहले हॉस्पिटल बना दिया है जो उन पेशेंट्स को डील कर सके। इस पे अवेयरनेस हमने पूरा मुल्क में चलाना चाहिए। फैसलाबाद से लेके पेशावर से लेके फाटा से लेके गवादर तक ये एक बहुत संगीन मसला है। और आप इस मिनी बजट में कॉन्ट्रासेप्शंस पे टैक्स लगा के, आपने कॉन्ट्रासेप्शंस पे टैक्स लगा के ये पूरा कौम के सामने साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब ने हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, इसको भी नहीं छोड़ा है। और इसके साथ साथ बच्चे के खाना पे, बच्चे के दूध पे भी टैक्स लगाए गए हैं। ये दोनों जो इक़दामात हैं, ये हमारे सोसाइटी के सबसे कमजोर तबके पे हमला है। आप लिटरली बच्चे के मुंह से नवाला छीन रहे हो। आप जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। जो खवातीन का खुद मुख्तारी है, उनकी चॉइस है कि वो उनका आजादी है कि वो रोजगार करे, अपने फैसले ले, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। जो हमारा मैल न्यूट्रिशन का इशू है, इस एक फैसला से, इन दो फैसले से अब तारीखी नुकसान पहुंचाना जा रहे हो। और ये तो सिर्फ वो आइटम्स थे जो इंपोर्टेड आइटम्स थे। आपने तो लोकली सप्लाइड गुड्स पे भी टैक्स लगाया है जनाब स्पीकर, इस मिनी बजट के थ्रू। आपने लोकली सप्लाइड कॉटन सीड्स पे 17% टैक्स लगाया। लोकली सप्लाइड वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम लोकल सीड्स पे आपने 17% टैक्स लगाया। रॉ कॉटन पे आपने 17% टैक्स लगाया। और एग्रीकल्चरल डीजल इंजन पे भी आपने 17% टैक्स लगाया। मतलब हम बाहर से भी मंगवाए उस पे भी टैक्स, खुद पैदा करे, अपना मईशत का फायदा करे, उस पे भी टैक्स। ये हर तरफ से हमारा अवाम का मुआशी कत्ल का बंदोबस्त है। आपने खाने पे का सामान पे भी टैक्स लगा दिया है। आपने टैक्स ऑन फूड स्टफ प्रिपेयर्ड इन फ्लाइट किचन्स टू बी कंज्यूम्ड ऑन फ्लाइट। ये तो ना सिर्फ जुल्म है मगर सुबह खुद मुख्तारी पे हमला है। और जो टैक्स सूबे को वसूल करने चाहिए सर्विसेज और फूड पे, आप उस पे भी इंक्रोच करने जा रहे हैं। और वो भी इतना इजाफा, 17% कोई मजाक है जनाब स्पीकर। आप 17% ब्रेड पे, नान पे, रस्क पे, जो बेकरी का सामान होता है, वो भी आम आदमी का खाने का सामान होता है, उस पे भी 17% टैक्स लगा के ना सिर्फ मजीद महंगाई का तैयारी कर रहे हो मगर आप सूबाई हुकूमत के जो डोमेन है सारे सूबे के, उस पे हमला करने जा रहे हो। ये सारे जो आपके इक़दामात है, जो अवाम का सबसे अहम मसला है, जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, उस पे असरात होगा। जो दावा वज़ीर आज़म साहब ने किया है, जो पत्नी हर महीने बाद वो महंगाई का नोटिस तो लेता है, नोटिस लिया जाता है, मगर जो आप अमली कदम उठाते हैं उसमें महंगाई कम नहीं, महंगाई का इजाफा होता है। और इस बजट का वो ही असर होगा। पहले हमें बताया गया कि महंगाई
تو دنیا بھر میں ہے اور اس لیے پاکستان میں بھی ہے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو ہر جگہ ہے مگر پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے. یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورا ریجن میں چاہے آپ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے مہنگائی ان سارے ممالک سے زیادہ ہے. مگر ہمیں بتایا گیا، عوام کو بتایا گیا کہ ہم سب سے کم ہیں. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. جب اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تو اب نیوز پیپرز میں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے مشیروں کو اور وزیروں کو بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، انفلیشن ہے نہیں. جناب اسپیکر، کتنا جھوٹ بھیجیں گے یہ لوگ، کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے. پاکستان کے عوام کو پتا ہے، پاکستان کا مزدور کو پتا ہے، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بچہ کو پتا ہے، پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتا ہے، پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی ہے جناب اسپیکر. اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے. 2018 سے لے کے آج تک فوڈ انفلیشن میں 54% اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں دسمبر 2020 سے لے کے دسمبر 2021 تک کوکنگ آئل میں 60% اضافہ، 60% انفلیشن، الیکٹریسٹی میں 60% انفلیشن، ایک سال میں دال میں 30% انفلیشن. اگر ہم سنانا شروع کرتے تو یہ بڑا لمبا ہوگا. آپ عام آدمی سے ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر. عام آدمی کو معلوم ہے کہ ان کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے، ان کے پیٹ پہ ڈاکہ ہو رہا ہے. وہ اپنا جو بیسک زندگی کی ضروریات ہے وہ پورا نہیں ہو رہے ہیں. جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر، ہم کوئی ریلیف نہیں پہنچا رہے. اور میں مہنگائی کا سامنا تھا تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تاکہ ہم عام عورت تک وہ امداد پہنچا سکے. اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے یہ پورا کوشش کیا کہ جتنے غریب عورتوں کو اس پروگرام سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہے، فون بل زیادہ ہے، کسی کا رشتہ دار عمرہ پہ گیا، حج پہ گیا، ان کو زبردستی بے نظیر کا پروگرام سے نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 سال سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے ہٹایا جائے گا. مگر جناب اسپیکر، جب 10 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اب جو معاشی حالات ہو چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے اس پروگرام سے لوگوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو اضافہ کرنا چاہیے، رقم میں اضافہ کرنا چاہیے، عوام جو فائدہ لے رہے اس کا تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. مگر یہ حکومت تو ظالم حکومت ہے، وہ نام بھی تبدیل کر رہے ہیں اور جو بیچارے غریب عورتیں فائدہ لے رہے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جب مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تو ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، تنخواہ میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ کیا، صفائیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا اور منیمم ویج میں کم از کم اجرت میں تاریخی اضافہ کیا. اب جو پوزیشن ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہ صرف ایک بار اضافہ کرنا چاہیے، آپ کو جو آپ کا مہنگائی کا شرح ہے ان کو کم از کم اجرت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. عوام کو جو سرکاری ملازم کا تنخواہ ہے اس کے ساتھ طے کرنا چاہیے تاکہ جب بھی آپ مہنگائی میں اضافہ کریں اتنا ہی اضافہ ہو ان کے تنخواہ میں. حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور حوصلہ ملے عوام کو تاکہ ہم مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی
सिंध की हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस मुआशी बहरान में NFC ना मिलते हुए मुश्किलात के बावजूद कि हम कम से कम जो मिनिमम वेज है जो हमारा लेबर क्लास को अफेक्ट करता है उसको 25,000 रुपीज रखा गया था, और जो 25,000 रुपीज पिछले बजट में रखा गया, अमीर लोगों ने जाके हमारा सिंध हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बिल्कुल सही है, ये हुकूमत का इख्तियारात है, उसको ये करना चाहिए। फिर जनाब स्पीकर, अफसोस के साथ आपको मैं ये शिकायत कर रहा हूं कि जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां हमारे अमीर लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया कि ये 25,000 रुपीज का जो मिनिमम वेज का बंदोबस्त सिंध हुकूमत ने किया है, ये अमीरों पे जुल्म है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जब तक वो फैसले ना सुनाए 25,000 का मिनिमम वेज ना हो। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, इस पूरा हाउस का मुतालबा होना चाहिए, हमारा जमात का तो वैसे ही मुतालबा है, हम खुद जाके खटखटाएंगे कोर्ट के दरवाजे पे कि इस किस्म का जालिमाना फैसले इन मुआशी हालात में नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सूबा अपना खुद मुख्तारी इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक मिनिमम वेज रखता है तो वो हमारे हक है जनाब स्पीकर, और फिर फोर सुप्रीम कोर्ट को इस स्टे ऑर्डर को मिटाना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, 25,000 सिर्फ हमारा मिनिमम वेज है। जब हम हुकूमत में थे उस वक्त एक आलमी इदारा ने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान में लिविंग वेज क्या है, कि कितना कम से कम वेज होना चाहिए ताकि आम आदमी अपना जिंदगी का गुजारा कर सके, और उस वक्त लिविंग वेज बनता था 27,000 रुपीज। तो अब जो जाके सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपीज का मिनिमम वेज रखा है, वो लिविंग वेज के तो नजदीक तक भी नहीं होगे जनाब स्पीकर। ये एक जुल्म है। जब भी मुआशी बहरान पैदा होता है तो हुकूमतें को इस किस्म के फैसले लेने चाहिए जो मुतवसत जो निचले सतह तक मदद पहुंचाया जाए, ताकि पूरे कौम एक होके मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके। मेरे थोड़ा पॉइंट्स है, फिर इंशाअल्लाह ताला में मुकम्मल करूंगा जनाब। तो हमारा मुतालबा है कि ना सिर्फ इजाफा हो मगर मिनिमम वेज पे जो पाबंदी है वो हटाया जाए। जनाब स्पीकर, मुल्क भर के किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है, इंतहा परेशानी में है। आपके हर बजट के नतीजे में उनके सारे इनपुट्स महंगे होते जा रही हैं और उनको अपने फसल की कीमत नहीं मिल रहा, फसल को नुकसान भी हो रहा है। पिछले सीजन में पानी का तकसीम सही नहीं हुआ, वक्त पे जगह जगह नहीं आया और ज़राए मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। और अब जो यूरिया क्राइसिस पैदा किया गया है, ये एक बार फिर मैन मेड क्राइसिस है, हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है जनाब स्पीकर। ये पहले भी हमने देखा कि कैसा इस हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ, फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के नाअहली की वजह से, इनकी फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब पूरी दुनिया में सबसे कम तरीन प्राइस मिल रहा था। हमने ये भी देखा है जनाब स्पीकर कि कैसे इस हुकूमत की फैसलों की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ और ये विंटर पाकिस्तान के अवाम को गैस का बगैर गुजारना पड़ा। ना चाय बना सकते हैं, ना गर्म शावर ले सकते हैं। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ क्राइसिस था। और अब जनाब स्पीकर, नवंबर में जाके यही वज़रा हमें कह रहे थे कि यूरिया का हमारा तो एक्सेस है, कोई मसला नहीं होगा। ये नवंबर का इनका बयानबाजी है। दिसंबर में जाके हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारे हारी ब्लैक मार्केट में जाके DAP और यूरिया के बंदोबस्त करने पे मजबूर है।
आपने पिछले फसल को पानी ना पहुंचने की वजह से नुकसान हुआ, इस फसल को यूरिया ना पहुंचने की वजह से नुकसान होगा। और अब इस हुकूमत की वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस है, यूरिया क्राइसिस है, और आगे जाके हमारा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस इसी क्राइसिस की वजह से पैदा होगा। ये एक तो होते हैं कि बहरान हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतों की वजह से, मगर ये वाहिद हुकूमत है जो खुद अपने लिए, खुद मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करते हैं। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। अब ये जो यूरिया क्राइसिस है, इस पे हुकूमत के वज़रा के बयानबाजी सुन के आम आदमी परेशान हो जाता है कि ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत में है कि इस किस्म की बयानबाजी हो सकता है। एक ऑनरेबल मेंबर साहब बताता है कि यूरिया का क्राइसिस इसलिए है कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये बार बार हर क्राइसिस में, पेट्रोल में तो इसलिए कि सिंध से पेट्रोल स्मगल हो रहा है, हर क्राइसिस पे एक सूबा पे ये जिम्मेदारी ठहराना है, एक तो वो अपनी जगह, मगर कौन इनको समझाएंगे, कौन इनको समझाएंगे कि सिंध का एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ भारत है, हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपका फौज जिम्मेदार है। अगर स्मगल हो भी रहा है तो आपका सूबा बलोचिस्तान से गुजरते हुए जाता है, पंजाब पख्तूनख्वा के बॉर्डर गुजरते हुए जाता है। अगर ये हो भी रहा है तो भी आप जिम्मेदार है, जो बहरान है उसकी भी आप जिम्मेदार है। और ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक सूबा से स्मगल हो रहा है, झूठ तो है जनाब स्पीकर, मगर हैरान कुन बात यह है कि जब हमने सिंध के कुछ फैक्ट्री से पूछनीछ की, पता चला, एंग्रो जैसे फैक्ट्री से पता चला, घोटकी के इदारे से पता चला कि 1,50,000 बैग्स ऑफ यूरिया, 1,50,000 बैग्स सिंध के स्टॉक से चोरी करके वजीर के कोटा के नाम पे, एक वजीर साहब जो यहां बैठा है और दूसरा वजीर साहब जो टीवी पे ये अफगानिस्तान का बयानबाजी कर रहा था, उनको दिया गया है। तो ये इंतहा तारीखी जुल्म है जिनकी कोई जरूरत नहीं था, जिसकी वजह से हमारा ज़रात पे नुकसान पहुंचेगा और जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मईशत पे नुकसान होगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक हम बंदोबस्त करेंगे, तब तक लेट होगा, तब तक फसलों को नुकसान हुआ होगा। हम 20 फरवरी तक इंतजार नहीं कर रहे हैं। 20 जनवरी पूरा मुल्क में किसानों ने कॉल दिया है, पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया है, हम फार्मर्स के यकजहती के लिए उनके शाना बशाना खड़े होकर मुल्क भर पे आपके ये जो पैदा किए गए क्राइसिस है उनको बेनकाब करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं दो और टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूं। टू मेनी टॉपिक्स, एक तो मैं काटता हूं। एक आपका हेल्थ कार्ड का मंसूबा पे बात करना चाहता हूं। पैंडेमिक के दौरान हमें सेहत का सेक्टर पे तवज्जो दिलवाना बहुत जरूरी था। ये जो हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट अब सेहत का इंसाफ कार्ड या पता नहीं क्या बन गया है, ये शुरू हुआ था
वसीले सेहत के नाम पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक सब सेक्टर्स, और वो वसीले सेहत का कॉन्सेप्ट ये था कि जो गरीब तरीन इंडिविजुअल्स है उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस का बंदोबस्त करें। बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो अपने हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी लेंगे, अपने हॉस्पिटल्स का बेहतरी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हुकूमत के हॉस्पिटल्स है वहां स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है और वहां तो हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त इलाज का बंदोबस्त हो। इस पे सिंध हुकूमत अपनी मेहनत कर रही है। अब हुकूमत वक्त का ये कहना है कि पूरा मुल्क को ये सेहत कार्ड को अपनाना चाहिए। हमारा इस पे जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो पैसा सरकारी हॉस्पिटल्स में खर्च होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाना चाहिए और मुफ्त इलाज के बंदोबस्त वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, वो उन सरकारी हॉस्पिटल्स पे के बजट पे डाका मार के हेल्थ कार्ड के नाम पे हम निजी हॉस्पिटल्स को ये पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को वो पैसा दे रहे हैं, और वो गरीब तरीन औरत जिनके पास कोई पैसा ना हो उनके लिए उतना ही पैसा सेहत कार्ड में मौजूद है जितना डिप्टी स्पीकर साहब के लिए उस सेहत कार्ड पे मौजूद है। हमारा ये ख्याल है कि ये हमारा वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं, ये शोशा जरूर है मगर हुकूमत के हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा सिंध के जो 3 हॉस्पिटल्स है, NICBD के लिए जो हुकूमत खर्च करती है, गंबट खैरपुर की हॉस्पिटल के लिए जो हुकूमत सिंध खर्च करता है, और जो SIUT को हुकूमत सिंध पैसा देती है, अगर हम सिर्फ ये 3 हॉस्पिटल्स का बजट मिला दे तो जो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत का इंसाफ का कार्ड का बजट है, ये 3 हॉस्पिटल्स का बजट एक पूरा सूबा का सेहत का इंसाफ हाथ की बजट से ज्यादा है। पख्तूनख्वा में जो आपका सेहत कार्ड है उसका बजट 21 बिलियन रुपीस है, और जो ये सिर्फ 3 सिंध के हॉस्पिटल्स हैं जहां मुफ्त इलाज होता है, जहां दिल का मुफ्त इलाज होता है, जहां लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज होता है, वो 3 हॉस्पिटल्स का बजट आपका पूरा का पूरा KP का हेल्थ कार्ड के बजट से ज्यादा है, 24 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाता है। अगर आप इस तरीके से लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को सपोर्ट करते, KP बलोचिस्तान पंजाब के हर इजला में हॉस्पिटल खड़ा कर देते, उसका मुफ्त इलाज का बंदोबस्त कर देता, थोड़ा तो ज्यादा खर्चा होता आपका सेहत कार्ड की कंपैरिजन में, मगर वो पैसा का बेहतर इस्तेमाल होता और मुफ्त इलाज का सहूलत आम आदमी तक पहुंचाता और उन लोगों तक पहुंचता जिनकी जरूरत हो। जैसे आपने सेहत के शोबे में ये मुआशी फैसले लिए हैं, वैसे आपने जो ओवरऑल मुआशी फैसले लिए हैं वो नुकसानदेह हैं, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने आपके सामने महंगाई की शिकायत की है, बेरोजगारी का शिकायत की है, गुर्बत का शिकायत की है, टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का अकबर अल्लाह। कौमी असेंबली नाज़रीन, कौमी असेंबली पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो खैरन जो इजहार कर रहे हो, पर फिलहाल वक्त हुआ है आज़ान जो।
अवां टैक्सिस जी जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में क़ौमी असेंबली जो इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहिनि, पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे रहिया आहिनि। फ़िलहाल वक़्तु थियो हो अज़ान जो। अव्हां खे ॿुधायूं पिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त अव्हां जी ज़िद ऐं अना सबब अवाम दुश्मन फ़ैसिला कया विया। नए पाकिस्तान जो मतिलबु महांगाई ऐं बेरोज़गारी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त अव्हां टैक्स जो तूफ़ान न सोनामी खणी आया आहियो, अव्हां IMF सां कमज़ोर डील खणी आया आहियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मईशत के हुकूमती फ़ैसिलनि अवाम खे मुश्किल में विझी छॾियो आहे।